Hello friends, I am Karthik Patel. I am an assistant professor at JG College of Commerce, affiliated to Gujarat University. I have been in this teaching line since 2013. I teach accountancy and taxation to the students at undergraduate level, postgraduate level, and even at the professional level like CA and MBA. Today we are going to learn one of the important topic, the question of 14 marks which was asked at Gujarat University. The question which was asked at Gujarat University for 14 marks. And what is the name of chapter? The name of chapter is cash flow statement. As far as the cash flow statement chapter is concerned, it is included in the syllabus of semester 5 TY BCom. So let us start to understand the cash flow statement. Now before I will start the question, let us understand what do you mean by cash flow statement. कि भैया आखिर ये cash flow statement होता क्या है. So cash flow statement, I have divided a cash flow statement into three parts. The first one is cash, the second one is flow, and the third one is statement. Now what do you mean by cash? Here cash, it doesn't mean only cash. Cash, it means cash and cash equivalents. What do you mean by cash? Here the cash means cash and cash equivalents. So sir, what it includes as far as the cash and cash equivalent is concerned? It includes three items. First one is cash balance, second one bank balance, and the third one is marketable securities. Sir, all the marketable securities are included? Answer is no. It includes only those marketable securities having a maturity period of 90 days or less. तो बेटा यहां पर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीजें कंसीडर करेंगे? थ्री आइटम्स आर इंक्लूडेड एज फार एज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज कंसर्न. द फर्स्ट वन इज कैश बैलेंस, द सेकेंड वन इज bank balance, and the third one is marketable securities, means which can be easily converted into cash, but what should be the period? The maturity period should be 90 days or less. तो कैश का मतलब यहां पर हो गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Now what do you mean by flow? There are two types of flow. One is inflow and the other one is outflow. So let us combine these words, cash inflow, cash outflow. और अब बेटा पूरा सेंटेंस हम रीड करने जा रहे हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट विच शोज अ कैश गोज आउटसाइड द बिजनेस, अ कैश विच कम इनसाइड द बिजनेस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. क्या बात है, इसका मतलब इतना आसान मतलब है? यस बेटा, ये बहुत सिंपल मतलब है. मैं क्या प्रिपेयर करने जा रहा हूं? सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इट्स नथिंग. क्या सर हम इसे कैश अकाउंट भी बुला सकते हैं? अगर मैं बोलूं तो यस बेटा. अगर मैं आपको बोलूं यस ये कैश अकाउंट ही है, तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, सर देन व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? व्हाट इज द नीड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट इफ इट इज सेम लाइक अ कैश अकाउंट? बेटा दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इट इज ऑल्सो कैश अकाउंट, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट. In cash flow statement, we divided the activity into three parts. The first one is cash flow from operating activity. Second one, cash flow from investing activity. And third one, cash flow from financial activity. बेटा याद आ रहा होगा, आप जब कभी भी कैश अकाउंट बनाते हो ना, तो कैश अकाउंट में हम ऐसा बाइफरकेशन कुछ नहीं करते. हम लोग बेटा सीधा क्या करते हैं, जितनी भाई क्रेडिट साइड आते हैं, जितने ट्रांजेक्शन आते हैं, वो हम बेटा क्रेडिट है, इनकम क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखते हैं. सो एज सच देयर इज नो बाइफरकेशन. ऐसा कोई बाइफरकेशन नहीं होता है. बट एज फार एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंसर्न, द एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट. फर्स्ट वन इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, cash flow from investing activity, and third one cash flow from financial activity. सर फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या आता है? बेटा एज फार एज द फाइनेंशियल एक्टिविटी इज कंसर्न, कौन कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल एक्टिविटी में कवर होते हैं?
So I can say that equity shares issued, buyback of equity shares. Second example, issue of preference shares, redemption of preference shares. अगर आपने बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इसका मतलब आपने डिबेंचर इश्यू की है, आपने बॉन्ड इश्यू की है, अगर आपने बैंक के पास से लोन लिए, तो बेटा इन सबको हम क्या मान के चलेंगे? ऑल दीज विल बी कंसीडर एज अ फाइनेंशियल आइटम. और उसके साथ साथ बेटा अगर इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, तो इक्विटी शेयर के साथ और जितनी कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी. सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट? बेटा कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट का मतलब होता है अगर आपने इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं तो इसका मतलब आप बेटा डिविडेंड पे करोगे. सो वेदर इट इज अ इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, इट इज ऑल्सो विच एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी. आपने बेटा डिबेंचर इश्यू किए हैं एंड यू ऑल नो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स, सॉरी वी हैव टू मेक द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट हमने पे किया, इट इज ऑल्सो विच एक्टिविटी? इट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एक्टिविटी. नेक्स्ट सेकेंड क्या बताया? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बेटा दो जगह से आता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एनी चेंजेस in respect to fixed assets and investment will be considered as a investing activity. इसका मतलब बेटा आपने फिक्स्ड असेट्स परचेस किए या बेची है, आपने इन्वेस्टमेंट परचेस किए या बेचे हैं, कौन सी एक्टिविटी में जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट, इसका मतलब उसके साथ साथ जितनी और एक्टिविटी जुड़ी है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो वी कैन से दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड, we can say that dividend received, we can say that rent received, etc etc. So बेटा दो एक्टिविटी क्लियर हो गई. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सर व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी? सो एज फार एज द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कंसर्न, इस एक्टिविटी में क्या आएगा? तो बेटा बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन है, बाकी जितनी भी एक्टिविटी है, इट इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है अ कैश फ्लो विच अराइजेज फ्रॉम मेन बिजनेस, द प्रिंसिपल बिजनेस. जो हमारा मेन बिजनेस होता है, जो हमारा प्रिंसिपल बिजनेस होता है, उसमें से कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है. सो दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. सो इवन वी कैन से दैट कि फिनेंस और इन्वेस्टिंग के अलावा बाकी जितने भी चीजें बची है, इट इज अ पार्ट ऑफ विच एक्टिविटी? इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी. अब बेटा मैं थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूं सर कि व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. व्हाट इज द नीड टू प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट? नाउ लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी हैज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बेटा चार चीजें उनको बनानी पड़ती है. पहला है बैलेंस शीट, second one is statement of profit and loss account, third one is cash flow statement, and fourth one is notes to account. So is it mandatory for all the company to prepare the cash flow statement? No, it is not mandatory for all the companies to prepare the cash flow statement. Sir, so for which company it is compulsory to prepare the cash flow statement? All the listed companies, for all the listed companies it is compulsory to prepare the cash flow statement. For unlisted, as far as the unlisted companies are concerned, whose net worth is 250 crore, more than 250 crore, even for them it is compulsory to prepare the cash flow statement. And sir, what about the unlisted company whose net worth is below 250 crore? बेटा उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. अनलिस्टेड कंपनी which are not part of small and medium size company, इसका मतलब it is divided into two part, SMCs, small and medium size company, other than small and medium size company. So for whom it is exempted? So I can say that for small and medium size company it is exempted. तो इसका मतलब बेटा unlisted company, and as far as the small and medium size companies are concerned, they are not required to prepare the cash flow statement. So it is compulsory for all the remaining company to prepare the cash flow statement.
तो सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता क्या चलता है? बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। बेटा जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है ना वो इसके बेस पर से डिसीजन लेता है। सर व्हाट काइंड ऑफ डिसीजन? बेटा डिसीजन ये होता है कि क्या इस कंपनी में मुझे और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या जितना इन्वेस्टमेंट है मैंने किया है उसमें से मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। तो बेटा पोटेंशियल इन्वेस्टर विल टेक अ डिसीजन बाय यूजिंग दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई कि भाई ऑपरेटिंग में से कितना कैश आ रहा है, फाइनेंस से भी मैंने कितना कैश लिया है एंड फाइनली यूज ऑफ दिस कैश, इस कैश को मैंने बिजनेस में किस तरह से लगाया है। बेटा तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं दे यूज दिस इंफॉर्मेशन फॉर टेकिंग अ फ्यूचर डिसीजन। So that's why we are using this cash flow statement. I hope I make it clear to all of you. ठीक है? And now let us start to solve one of the important question. This question was asked for 14 marks at Gujarat University. And today we are going to solve the question. So let us read the question. Question number 1. Following are the balance sheet of Lala Limited as on 31st March 2018 and 31st March 2019. So बेटा बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट मेरे पास अवेलेबल है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, certain informations are also given, and the last point is one of the important point. It is said that from the above balance sheet and information, prepare a cash flow statement as per accounting standard 3. तो बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, आई होप दैट यू ऑल आर अवेयर अबाउट द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेटा मुझे जो प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. यस, so my format is ready. So from where we have to start to write the answer? We have to start the answer. I have written Lala Limited, the name of company, cash flow statement for the year ended on 31st March 2019. Lala Limited cash flow statement for the year ended on 31st March 2019. बेटा फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा मैं सीधा आंसर से शुरू कर रहा हूं और बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा एज फार एज दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कंसर्न there are two methods through which we can find out this operating activity, but as far as accounting standard 3 and as far as the companies are concerned, बेटा उनको जो फॉलो करना है ना वो कौन सी मेथड फॉलो करनी है? इनडायरेक्ट मेथड। तो यहां पर बेटा जो हमारा क्वेश्चन है वो भी मैंने इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व किया है, ठीक है ना। तो बेटा पहला मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें कहां से शुरू करना है? याद रखना बेटा मैं उसी फॉर्मेट से आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूं जो AS3 में बोला गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा मुझे कौन सा प्रॉफिट यहां पर चाहिए? आई हैव टू बिगिन माई आंसर विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बेटा उसमें मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करना है? नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई थिंक यू ऑल आर अवेयर बेटा कि ये मेरी कौन सी मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है, and we have started our answer from net profit. So there are certain adjustment that we need to make as far as the profit and loss account is concerned. बेटा मैंने profit and loss account में कुछ non cash expenses डाल दिए होंगे, मैंने कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, कैश इनकम अगर मैंने कंसीडर की है तो उसकी मुझे रिवर्स इफेक्ट देनी पड़ेगी और उसी मेथड को हम क्या कहते हैं बेटा? इनडायरेक्ट मेथड. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज पर इनडायरेक्ट मेथड। हम ये इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। सो फॉर्मेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें बेटा ऐड करना है नॉन कैश ऑब्लिक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट बेटा मैंने लिखा है लेस, उसी तरह से अगर क्रेडिट साइड अगर आपकी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन कैश इनकम है तो अगर मैंने क्रेडिट किया है तो मुझे उसका रिवर्स करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, बेटा यहां पर हम लोग change in working capital, what do you mean by working capital? A capital which is required for day to day expenses of the business is known as a working capital. और कैसे मिलती है working capital? सर current assets minus current liability.
तो बेटा यहां पर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में जितना चेंजेस आता है उसे भी हम सेपरेटली मेंशन करेंगे, उसको हम सेपरेटली दिखाएंगे, तो वो हम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद बेटा उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स। इसका मतलब करंट ईयर में मैंने जितना टैक्स पे किया है, टैक्स याद रखना बेटा, पेमेंट ऑफ टैक्स इट इज ऑल्सो विच एक्टिविटी, इट इज ऑल्सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो हम लास्ट में दिखाते हैं। और एक और चीज बेटा मैंने लिखी नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में वो आइटम है नहीं, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बेटा अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरी आइटम होती तो वो भी मैं कहां पर लिखता, यहां पर सेपरेट लिखता, बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न देयर इज नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सो बेटा वो मैंने लिखा नहीं है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट नंबर बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, एंड फाइनल नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। ठीक है यहां तक। तो बेटा ये आपकी तीनों एक्टिविटी हो गई। फाइनली क्या करना है बेटा, ये जो तीनों एक्टिविटी में आंसर आएगा वो मुझे प्लस करना है, ठीक है ना। इसका मतलब नेट कैश फ्लो में भी बेटा ये आंसर माइनस में भी आ सकता है, ठीक है ना। सो ए प्लस बी प्लस सी, उसमें मुझे ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या ऐड करना है मुझे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बेटा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बैलेंस शीट में, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब 3 आइटम आप लोगों को देखना है कि सर ओपनिंग बैलेंस में हम क्या क्या ऐड करेंगे। तो 3 आइटम याद रखना बेटा, फर्स्ट वन इज कैश बैलेंस, सेकेंड वन इज बैंक बैलेंस, एंड द थर्ड वन इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है ना, हैविंग अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 90 डेज और लेस। और फाइनली बेटा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक अच्छी बात बेटा इस क्वेश्चन में क्या है पता है, कि आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आपके पास ही अवेलेबल होगा, क्योंकि आपका जो क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट होगा वही आपका फाइनल आंसर है। सो एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न मैं बोल सकता हूं ये एक पॉजिटिव चीज है, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में जब हमारे पास आंसर अवेलेबल नहीं होता है, बट एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, दिस चैप्टर इज कंसर्न, आपके पास बेटा आंसर अवेलेबल होगा, ठीक है ना। उसके बाद बेटा कुछ मैंने अकाउंट्स ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं, ठीक है ना। और एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, इवन एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न वी आर गोइंग टू पास दी जर्नल एंट्रीज, हम जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। लेट मी टेल यू, जर्नल एंट्री के कोई मार्क्स नहीं है, बट जर्नल एंट्री हम लोग क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि इनिशियल लेवल पे इट इज फ्रॉम माय साइड इट इज रेकमेंडेड, ये मेरा रेकमेंडेशन है कि अगर आप इनिशियल स्टेज पे अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो देन यू हैव टू पास दी जर्नल एंट्री। एक बार आपको पता चल जाए उसके बाद बेटा आप ये जर्नल एंट्री पास नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। यस, शुरू करते बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कहां से शुरू करना है बेटा, वी हैव टू ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विद एडिशनल इंफॉर्मेशन, वी हैव टू ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। सो लेट अस रीड द फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है बेटा, पहली इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर बिल्डिंग इज 1,20,000 एंड मशीनरी रुपीज 1 लाख। बेटा कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, 1,20,000 एंड 1 लाख। So in the current year we have provided depreciation on building and on machinery। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने जितने एडजस्टमेंट आ रहे हैं ना उसके साथ साथ जितने नेसेसरी अकाउंट्स है वो अकाउंट्स हम बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा अकाउंट हम बनाएंगे, लेट अस प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट, लेट अस प्रिपेयर द बिल्डिंग अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। यस, so let us start to prepare the account. So first of all we are going to prepare the building account, and the second account is machinery account। बेटा क्या ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, लेट अस चेक दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। बेटा बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया है 640, बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस दिया है 640। बेटा असेट का बैलेंस कहां पर आता है ओपनिंग बैलेंस, यस ऑन द डेबिट साइड, तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और बेटा यहां पर क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। आई होप आप सबको मतलब पता है बेटा बीडी का मतलब क्या होता है और सीडी का मतलब क्या है, ब्रॉट डाउन, और सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन, ठीक है। सो व्हाट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, सो द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग इज 640 and what is the closing balance, the closing balance is 10 lakh। next machinery account, opening balance
and closing balance. So what is the opening? 560 and 8 lakh. Opening balance is 560 and closing balance is 8 lakh. ठीक है. Now let us understand the first additional information. Once again, it is said that depreciation provided during the year for building is 1,20,000 and machinery rupees 1 lakh. So for that we have to pass the journal entry. Tell me what should be the journal entry. बेटा आपकी पहली journal entry क्या होगी? सर depreciation है. सर depreciation we have to always charge the depreciation to which account? Profit and loss account. So let us pass the first journal entry. Profit and loss account debit to respective asset account. So what should be credited? To बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट. बेटा बिल्डिंग पे कितना डेप्रीसिएशन था? 1,20,000. मशीनरी पे कितना डेप्रीसिएशन है? 1 लाख. सो बेटा टोटल कितना डेप्रीसिएशन हमने चार्ज किया? सो दैट इज 2,20,000. सो दिस इज योर जर्नल एंट्री. अब बेटा इसकी इफेक्ट मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में देनी है. अब एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम जो बना रहे हैं ना, याद रखना कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ वही आइटम्स आ सकती है जिसमें कैश दिख रहा हो. समझ में आ रहा है? सो एज फार एज द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंसर्न, इट इंक्लूड्स ओनली दोज आइटम्स, दोज इनकम, दोज एक्सपेंसेस विच इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ कैश. अब मुझे बताओ बेटा यहां पर कहीं पर भी आप लोगों को कोई कैश एलिमेंट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है. ठीक है ना. तो इसका मतलब सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. बेटा मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया है. अब मुझे बताओ ये मेरी कौन सी मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड है. ये मेरी इनडायरेक्ट मेथड है. और मैंने आपको बताया था बेटा कि इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने जितने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मैंने डेबिट किए हैं, जो मैंने माइनस किए हैं, वो मुझे क्या करने पड़ेंगे? रिवर्स. तो मुझे बताओ बेटा डेप्रिसिएशन whether it is a part of cash flow statement? Answer is no. Sir, it is a non-cash activity. और अगर ये non-cash activity है और अगर ये मैंने डेबिट की है तो बेटा मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा? उसको रिवर्स. इसका मतलब हम क्रेडिट करेंगे. तो सबसे पहले बेटा मैं इफेक्ट देने जा रहा हूं. कहां पर मुझे ऐड करना है बेटा? मुझे यहां पर ऐड करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उसमें पहले मैंने लिखा है नॉन कैश. तो बेटा ये मेरा कौन सा एक्सपेंसिस हो गया? नॉन कैश. तो मैं पहले लिख रहा हूं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी. बेटा टोटल कितना है? 2,20,000. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीनरी 2,20,000. और बेटा दूसरी इफेक्ट मैंने क्या लिखी है? दूसरी इफेक्ट मैंने दी है पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट में. तो जो अकाउंट्स हमने बनाया बेटा वहीं पे हम लिख लेते हैं. तो मैं यहां पर बेटा लिख सकता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आपको मेंशन करना है तो कर सकते हो भी डेप्रिसिएशन. Depreciation. So what is the depreciation in case of building? That is 1,20,000. In case of machinery, by profit and loss account. Depreciation. कितना depreciation था? 1 lakh. That's it. बेटा ये हो गई हमारी पहली जर्नल एंट्री. ये हो गया हमारा पहला एडजस्टमेंट. बेटा पहला एडजस्टमेंट हमारा हो गया. नेक्स्ट सेकेंड important point number 2. After fulfillment of company law provision, preference shares are redeemed at 5% redemption premium. Rupees 4 lakh is transferred from general reserve to capital redemption fund account. सबसे इंपॉर्टेंट है. अब बेटा ये समझने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज कंपनी लॉ का भी होना चाहिए. क्या लिखा है? आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी लॉ प्रोविजन. सो व्हाट डू मीन बाय आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी लॉ प्रोविजन? प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट 5% रिडम्पशन प्रीमियम. तो बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मुझे रिडीम करने हैं एट 5% प्रीमियम. बट बेटा कंपनी लॉ में उसकी प्रोविजन है कि आप प्रेफरेंस शेयर्स कब रिडीम कर सकते हो? जब वो फुल्ली पेड अप हो. इसका मतलब अगर वो पार्टली पेड अप है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसको फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा. इसका मतलब हम देख सकते हैं बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट लिखा है बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹10 और लिखा है बेटा कितना पेड अप है? ₹7 पेड अप. तो इसका मतलब सिर्फ ₹7 पेड अप है.
इसका मतलब बेटा कितने रुपए मंगवाने बाकी है? 3 रुपए। तो अब याद रखना बेटा, सबसे पहले अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पार्टली को फुल्ली पेड अप, इसका मतलब फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर लिए हैं, और कर लिए तो इसका मतलब सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? इस पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेगी। तो बेटा कितने रुपए का कॉल हम मंगवाएंगे? सर 3 रुपए का कॉल मंगवाएंगे। तो बेटा सबसे पहले मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स है यहां पर? तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा 2,80,000 यहां पर लिखा है ना, 280, तो ये हो गया आपका 2,80,000 डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल, सो डिवाइडेड बाय 7। तो बताओ बेटा कितना आ जाएंगे आपके प्रेफरेंस शेयर्स? 40,000। तो इसका मतलब सबसे पहले ये 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स पे मुझे 3 रुपए का कॉल मंगवाना पड़ेगा, और अज्यूम कर लो कि ये 3 रुपए का कॉल मैंने मंगवा लिया। तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री मुझे बताओ, 3 रुपए का कॉल कंपनी ने मंगवा लिया टू मेक इट फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेटा 3 रुपए का कॉल मैंने मंगवाया, बताओ क्या जर्नल एंट्री होगी? अरे सोचना यही है जर्नल एंट्री में कि भाई मेरे पास क्या आ रहा है और मेरे पास से क्या जा रहा है। तो बेटा मैंने 3 रुपए का कॉल मंगवाया, तो मेरे पास क्या आ रहा है? सर आपके पास कैश आ रही है। तो इसका मतलब मैं लिखूं बेटा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, और यहां पे मैं लिख सकता हूं बेटा 40,000 इंटू 3, सो दैट इज 1,20,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा अमाउंट कितनी हो जाएगी? 1,20,000। ठीक है। अब बेटा इसकी इफेक्ट मुझे देनी है, कहां पर देनी है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बताओ क्या बेटा इसकी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी? डेफिनेटली आएगी सर, क्योंकि जिस जर्नल एंट्री में आप लोगों को बेटा वर्ड दिखाई देना कैश ऑब्लिक बैंक, इसका मतलब समझना है इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये कौन सी एक्टिविटी है? सर कैश फ्लो में तो आएगा, बट ये कौन सी एक्टिविटी में आएगा? वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग या फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बेटा मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल भी दिया था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी ने इश्यू की है या कंपनी ने रिडीम की है, तो बेटा ये कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बेटा फाइनेंशियल एक्टिविटी में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम लोग लिखेंगे, कहां पर लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहली कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी, उसमें हम लोग लिखेंगे इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो? पैसे आए हैं सर, इसका मतलब कैश इनफ्लो 1,20,000, 1,20,000। अगर इनफ्लो है तो प्लस, और अगर आउटफ्लो है तो हम लिखेंगे माइनस। एक एंट्री यहां पर आ गई। बेटा दूसरी एंट्री कहां पर? आप बोलोगे सर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नहीं बेटा देखो, हर चीज के लिए हम लोग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेफरेंस शेयर मैं रिडीम करने जा रहा हूं। रिडीम का मतलब है जितने भी मेरे प्रेफरेंस शेयर मैंने इश्यू किए थे वो मैं रिडीम का मतलब मैं वापस लेने जा रहा हूं। और समझ में आना चाहिए, जब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापस लेने जा रहा हूं तो इसका मतलब ये अकाउंट वैसे भी अपने आप क्लोज हो जाएगा। कैसे? तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, चलो ये शॉर्टकट, ठीक है ना, सारे अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, यहां पर समझने के लिए सिर्फ मैं लिख रहा हूं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा ओपनिंग बैलेंस कितना था देखते हैं, चलो ओपनिंग बैलेंस कितना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल? सर ओपनिंग बैलेंस है 280। बेटा ओपनिंग बैलेंस इज 280, सो ऑन द क्रेडिट साइड वी हैव टू राइट ओपनिंग बैलेंस। और बेटा क्लोजिंग बैलेंस मेरा कितना है? बेटा मेरा क्लोजिंग बैलेंस 0 है। मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 0। तो यहां पर बेटा डैश आ जाएगा। अब इसकी इफेक्ट देते हैं, क्या लिखा हमने जर्नल एंट्री? हमने जर्नल एंट्री की कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आई हैव टू राइट बाय कैश एंड बैंक अकाउंट। मैं लिख नहीं रहा हूं बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ लो बेटा ये मेरी एंट्री हो गई, दैट्स इट, ठीक है, ये एंट्री हो गई। इसकी इफेक्ट मैंने दे दी। मैं बोल रहा हूं ये अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूं सेकंड एडजस्टमेंट। लुक एट दिस सेकंड एडजस्टमेंट। यस, आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ कंपनी लॉ प्रोविजन, इसका मतलब बेटा मैंने फुलफिल कर दी, जो पार्टली पेडअप थे उसको मैंने फुल्ली पेडअप में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या, अब मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर सकता हूं? बट ऑब्वियस यस, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट 5% रिडम्पशन प्रीमियम। इसका मतलब अब बेटा सेकंड, उसी में सेकंड, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट 5% प्रीमियम। तो इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं 5% प्रीमियम के साथ रिडीम करने जा रहा हूं। तो इसका मतलब देखो बेटा मेरा बैलेंस कितना हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का? 4 लाख। तो इसका मतलब बेटा ये 4 लाख के शेयर्स मैं क्या कर रहा हूं? रिडीम। इसका मतलब मैं वापिस ले रहा हूं। मेरे पास शेयर्स आ रहे हैं और बेटा मैं उनको क्या कर रहा हूं? पैसे वापिस दे रहा हूं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? सोचो,
कि भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने रिडीम की है तो सर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वापिस आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट सर 4 लाख। बेटा प्रीमियम के साथ मैं इसको रिडीम कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को मैं प्रीमियम के साथ रिडीम कर रहा हूं। कितना प्रीमियम है 5%, तो बेटा 4 लाख उसके 5% करो, कितना आएगा 20%। तो बेटा ये 20% हम कहां से पे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सर ये 20% हम कहां से पे करेंगे। बेटा बताओ ये 20% आप सिक्योरिटी प्रीमियम में से भी पे कर सकते हो, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो सीधा डायरेक्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से भी पे कर सकते हो। बट यहां पर आप लोग देख सकते हो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 40 है और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास कितना है बेटा, सॉरी ओपनिंग बैलेंस मेरा 60 है क्लोजिंग कितना है 40 है। तो इसका मतलब क्या ये सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं यूज कर सकता हूं यहां पर, आंसर इज यस। तो इसका मतलब बेटा एंट्री में मैं क्या लिखूंगा यहां पर, व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, व्हाट वी आर गोइंग टू मेंशन, जर्नल एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट बेटा 20,000। और फाइनली बेटा मैं कह सकता हूं कि भाई कितने रुपए मैंने पे किए, सो कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट 4,20,000। आई होप आई मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है बेटा। 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स मैंने 4,20,000 में रिडीम किए, इसका मतलब वापस लिए। तो इसका मतलब बेटा मैंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख। अब बेटा ये जो एंट्री है मैं इसको क्या करने जा रहा हूं, लेजर में पोस्टिंग करने जा रहा हूं। देखो मैं क्यों लेजर बनवा रहा हूं आप लोगों को इसीलिए समझ में आया, ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब जैसे ही बेटा मैं यहां पर लिखूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो बेटा ये 4 लाख मैं यहां पर डेबिट लिख दूंगा, ठीक है ना, ऑन द डेबिट साइड यही आएगा। मैं यहां पर लिख दूंगा टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 4 लाख। तो इसका मतलब बेटा ये मेरा अकाउंट क्या हो गया, ये मेरा अकाउंट टैली हो गया। तो याद रखो बेटा जब कभी भी अकाउंट टैली हो रहा है तो इसका मतलब ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते जाएंगे बेटा, जितने जितने अकाउंट मेरे टैली हो रहे हैं ना, हम लोग बेटा क्वेश्चन में ये टिक मार्क लगाते जाएंगे कि भी मेरा ये अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो बेटा मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को टिक मार्क लगा रहा हूं, ये मेरा अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। अब बेटा मैं कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हूं, अभी इसी में क्या लिखा हमने, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट बेटा 4 लाख मैंने यहां पर लिख दिया। नेक्स्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सर क्या ये भी अकाउंट बना है, नहीं बेटा देखो अगर अकाउंट अपने आप बंद हो रहे हैं ना तो इसका मतलब ये भी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बेटा कितना ओपनिंग बैलेंस मैंने बताया आपको, ओपनिंग बैलेंस था 60,000, सो ऑन क्रेडिट साइड 60,000। बेटा डेबिट साइड इसका मतलब मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है 40,000। और अब बेटा रीड करो, जो जर्नल एंट्री मैंने पास की है वो रीड करो, लिखा है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मुझे लिखना क्या है, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितनी अमाउंट बेटा मैं लिखूंगा 20,000। तो इसका मतलब बेटा मेरा ये अकाउंट भी टैली हो गया 60,000। सो सर देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक बार हम टिक कर लेते हैं कि सर कौन सा अकाउंट टैली हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बेटा ये भी अकाउंट मेरा क्या हो गया, टैली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अभी भी बेटा जर्नल एंट्री और फाइनली क्या है बेटा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। और आप सब जानते हो बेटा जब कभी भी बेटा जर्नल एंट्री में वर्ड आए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, इट मींस इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट बताओ कौन सी एक्टिविटी है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और बेटा मैंने रिडीम किए हैं तो इसका मतलब पैसे आए या गए, सर पैसे गए। सो 4,20,000 मैं लिख रहा हूं बेटा नेगेटिव, मैं लिख रहा हूं नेगेटिव अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट उसी में कंटिन्यू क्या है बेटा, लिखा है एक और चीज लिखी है, ₹4 लाख इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फंड। अब बेटा मैं बताऊं कंपनीज एक्ट में ये प्रोविजन है, जब कभी भी आप रिडीम करते हो ना तो जितने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसकी जितनी नॉमिनल वैल्यू होती है वो नॉमिनल वैल्यू का आपको क्या क्रिएट करना पड़ता है, CRR, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 4 लाख का आपने CRR क्रिएट किया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। और बेटा ये अकाउंट मैंने क्रिएट किया, कहां से क्रिएट किया, तो मेंशन किया है फ्रॉम जनरल रिजर्व अकाउंट। तो बेटा क्या जर्नल एंट्री में इसकी पास कर सकता हूं, यस। 4 लाख रुपए का मैंने क्या किया बेटा, मैंने CRR क्रिएट किया। तो बताओ बेटा मुझे जर्नल एंट्री क्या होगी, व्हाट शुड बी दी जर्नल एंट्री। बेटा जर्नल एंट्री मेरी क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी सर जनरल रिजर्व आपने यूज किया है तो जर्नल एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो लिखो बेटा नेक्स्ट जर्नल एंट्री नंबर 4, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। कितनी अमाउंट बेटा? 4 लाख। अब मुझे बताओ बेटा क्या इसकी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी? क्या इसकी इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगी? आंसर इज नो। सर इसकी इफेक्ट कहीं पर भी कैश फ्लो में नहीं आएगी, क्योंकि सर इससे कहां कंपनी का कोई आउटफ्लो हो रहा है और कहां इनफ्लो हो रहा है। मैंने क्या किया समझ में आ रहा है? कंपनी ने भाई अपनी एक जेब में से पैसे निकाले और दूसरी जेब में डाल दिए, वही हुआ ना। जनरल रिजर्व में से मैंने क्या किए? पैसे निकाले और कैपिटल रिडम्पशन में मैंने पैसे डाल दिए। तो बताओ क्या कोई इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है? सर आंसर इज नो। तो इसका मतलब बेटा ये एडजस्टमेंट कहीं पर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट बेटा मुझे इसके लिए अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। वी हैव टू प्रिपेयर दी अकाउंट। तो बेटा हम लोग अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट, और यहां पर एक और अकाउंट बनाएंगे बेटा CRR अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो देखो बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कितना है? What is the opening balance and what is the closing balance of general reserve account? So let us check the opening balance of general reserve 320 and closing is 2 lakh. So 320, 3,20,000 and 2 lakh. What is the opening and closing balance of CRR? सर CRR दिया ही नहीं है, देयर इज नो CRR। हम ये क्रिएट कर रहे हैं अभी अभी, तो इसका मतलब बेटा कोई बैलेंस नहीं है। कोई बात नहीं, देयर इज नो बैलेंस, तो कोई बैलेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम कब कोई बैलेंस नहीं लिखेंगे उसका। और अब बेटा मैं जर्नल एंट्री की इफेक्ट देने जा रहा हूं। क्या जर्नल एंट्री हमने पास की? हमने जर्नल एंट्री पास की जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट वी हैव टू राइट CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बेटा कितनी अमाउंट? अमाउंट इज 4 लाख। अमाउंट इज 4 लाख। और CRR में क्या करेंगे? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। बेटा कितनी अमाउंट हो जाएगी? अमाउंट इज 4 लाख। दैट्स इट। यस, ये हो गया बेटा हमारा एडजस्टमेंट नंबर 2, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है बेटा? डिबेंचर्स ऑफ ₹4 लाख आर इश्यूड एट 5% डिस्काउंट। बेटा क्या किया है मैंने? डिबेंचर्स ऑफ ₹4 लाख आर इश्यूड एट 5% डिस्काउंट। बेटा 4 लाख के डिबेंचर है, बेटा डिस्काउंट कितना है? लेस है ना, डिस्काउंट का मतलब लेस डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। तो बेटा इसका 5% डिस्काउंट, इसका मतलब 20,000 इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। सो वी कैन से दैट 4 लाख के डिबेंचर कितने में इश्यू किए हैं? एट 3,80,000। सो वी कैन से दैट दिस 20,000 इज आवर लॉस। सो फाइनली वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री। तो बेटा इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? जर्नल एंट्री होगी जर्नल एंट्री नंबर 5। डिबेंचर इश्यू किए हैं। सो बेटा डिबेंचर जा रहे हैं और हमारे पास क्या आ रहा है? कैश ऑब्लिक बैंक। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 3,80,000। बेटा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, टेल मी डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट, ये मेरा लॉस है। सो लॉस है, तो बेटा लॉस हम कहां पर दिखाएंगे? ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, I can say that discount on debenture amount 20,000 to debenture account amount is 4 lakh. To debenture account amount is 4 lakh. Once again, what should be the journal entry? The journal entry is cash oblique bank account debit 3,80,000, discount on debenture. So basically this discount is nothing but it is our loss, and loss should be debited to profit and loss account. So I have written profit and loss account debit, mention किया है बेटा discount on debenture to debenture account 4 lakh. ठीक है, अब बेटा इसकी इफेक्ट हम देते हैं, कहां पर देना है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो बेटा जर्नल एंट्री में कैश और बैंक कहां पर दिख रहा है? तो कैश और बैंक है 3,80,000। बताओ बेटा आपने क्या किया है? इश्यू ऑफ डिबेंचर, कौन सी एक्टिविटी? इश्यू ऑफ डिबेंचर, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बेटा हम लोग कहां पर लिखेंगे? इसे लिखेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में। इश्यू ऑफ डिबेंचर
इश्यू ऑफ डिबेंचर, बेटा कितनी अमाउंट आ जाएगी? इश्यू ऑफ डिबेंचर कैश इनफ्लो 3,80,000, इश्यू ऑफ डिबेंचर कैश इनफ्लो 3,80,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, बेटा पीएनएल मैंने डेबिट किया है, बेटा पीएनएल डेबिट किया है, इसका मतलब कहां पर आना है? फर्स्ट एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और मुझे बताओ बेटा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ये कौन सी एक्टिविटी है? बेटा हमने पीएनएल में इसको डेबिट किया है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। बट बेटा ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी हम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज इट इज योर नॉन कैश एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि 100 रुपए की चीज मैंने 80 में बेची, तो मुझे बताओ जो 20 रुपए का लॉस है, क्या उस लॉस में कहीं पर कैश दिख रहा है आपको? आंसर इज नो। तो मुझे बताओ बेटा ये कौन सी एक्टिविटी है? इट इज योर नॉन कैश एक्सपेंसिस, बट स्टिल वी हैव डेबिटेड दिस नॉन कैश एक्सपेंसिस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटा मैं इसे ऐड करूंगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। कितना डिस्काउंट है? 20,000, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 20,000। एंड लास्ट वन इज डिबेंचर अकाउंट। क्या डिबेंचर अकाउंट बनाने की जरूरत है? इज देयर एनी नीड टू प्रिपेयर द डिबेंचर अकाउंट? चेक कर लेते हैं सर, जर्नल एंट्री आपने क्या बताई और देख लेते हैं डिबेंचर अकाउंट। ओके, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? सर देयर इज नो ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। तो बेटा जर्नल एंट्री बताओ, क्या जर्नल एंट्री हमने की? हमने जर्नल एंट्री पास की, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इसका मतलब बेटा जैसे ही यहां पर ये लेजर पोस्टिंग मैं करूंगा, ये डिबेंचर अकाउंट भी मेरा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। सो इट मींस देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर डिबेंचर अकाउंट ऑल्सो। तो बेटा हम क्या कर लेते हैं, टिक मार्क लगा लेते हैं सर कि आपका डिबेंचर अकाउंट भी क्या हो गया? क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पॉइंट नंबर 4, द कंपनी हैज इश्यूड अ बोनस शेयर्स एट 2:1 टू प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल रिडम्पशन फंड। क्या किया है भाई? कंपनी ने क्या इश्यू किया है? बोनस शेयर इश्यू किए। कहां से इश्यू किए? सीआरआर। अब बेटा कंपनीज एक्ट 2013 बेटा प्रोविजन है कि भाई जो सीआरआर आपने क्रिएट किया है ना, वो सीआरआर का यूज क्या होता है? तो बेटा वन ऑफ द यूज इज टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। हम उसमें से क्या कर सकते हैं? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इश्यू कर सकते हैं। तो हमने वही किया। ये जो सीआरआर मैंने क्रिएट किया था, उसमें से मैंने क्या इश्यू किए? बोनस शेयर इश्यू किए। इन विच रेशियो? इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो सबसे पहले बेटा मैं चेक कर रहा हूं कि मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है। The opening balance of equity share capital is 8 lakh. बेटा what is the face value of share? The face value of share is 10. तो इसका मतलब बेटा मैं नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता हूं कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। सो 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब बेटा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? मैं कह सकता हूं बेटा 8 लाख डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब कितने शेयर्स हो गए? आपके शेयर्स हो गए 80,000। आपके शेयर्स कितने हो गए? 80,000 आपके शेयर्स हो गए। अगर आपके 80,000 शेयर्स हो गए तो बेटा किस रेशियो में हम इश्यू कर रहे हैं बोनस शेयर? 2:1 रेशियो। इसका मतलब अगर आपके पास 2 शेयर्स है तो आपको बेटा कितना शेयर मिलेगा? 1 शेयर। तो टोटल शेयर्स कितने हैं मेरे पास? 80,000। तो मुझे कितने बोनस शेयर मिलेंगे बेटा? 40,000। द नंबर ऑफ बोनस शेयर्स 40,000। बेटा एट व्हाट प्राइस? कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब एट फेस वैल्यू। सो 40,000 इंटू 10, इसका मतलब बेटा कितनी अमाउंट हो गई? 4 लाख। It means 4 lakh. So we can say that the company has issued a bonus shares of rupees 4 lakh out of capital redemption reserve account. CRR में से मैंने कितने बोनस शेयर इश्यू किए? 4 लाख। तो बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी? तो CRR अकाउंट मैंने यूज किया है, तो जर्नल एंट्री होगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या जा रहा है बेटा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो लेट अस पास द जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। अवर नेक्स्ट जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री नंबर 6, क्या की हमने जर्नल एंट्री? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने? अमाउंट इज 4 लाख। अमाउंट इज 4 लाख। बेटा सीआरआर अकाउंट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, यस, तो उसकी इफेक्ट दे देते हैं सीआरआर अकाउंट में। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, so we have already prepared the capital redemption reserve account. So on the debit side of CRR we have to mention 2
क्या लिखना है? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल रिजर्व अकाउंट मुझे लिखना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिख सकते हैं बेटा इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। कितनी अमाउंट? 4 लाख। और देखिए बेटा आपका एक और अकाउंट टैली हो रहा है 4 लाख 4 लाख। बताओ बेटा मुझे, क्या इसकी कोई इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगी? आंसर इज नो सर। कहीं पर भी कैश वर्ड दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें कहीं पर भी कैश एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होगा। तो इसकी एंट्री कहां पर एक मैंने लिखी, एक मैंने लिखा बेटा CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर क्या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाना है? आंसर इज नो, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वंस अगेन देखो बेटा क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल फिर से मैं बता दूं वही शॉर्टकट है। सबसे पहले चेक करो अगर अकाउंट अपने आप बेटा क्लोज हो रहा है सिर्फ एक एंट्री लिखने से, तो इसका मतलब वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 8 लाख। सो योर ओपनिंग बैलेंस इज 8 लाख। व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस? बेटा क्लोजिंग बैलेंस आपका है 12 लाख। और अब जो जर्नल एंट्री आपने पास की एक बार रीड करते हैं। क्या जर्नल एंट्री हमने की? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल मुझे लिखना है बाय CRR 4 लाख। तो इसका मतलब बेटा ये भी अकाउंट मेरा क्लोज हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12 लाख 12 लाख। आई होप आई मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी क्या हो गया? क्लोज। तो बेटा मैं इसे भी टिक मार्क लगाने जा रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी मेरा क्या हो गया? क्लोज हो गया, ठीक है। यस, नेक्स्ट रीड द पॉइंट नंबर 5। क्या लिखा है बेटा पॉइंट नंबर 5? इनकम टैक्स पेड कितना पे किया है? इनकम टैक्स पेड ₹1 लाख एंड प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो पेड। बेटा मैंने इनकम टैक्स पे किया है 1 लाख और प्रपोज डिविडेंड, तो देखते हैं क्या कोई अकाउंट हमारे पास अवेलेबल है। यस बेटा 2 अकाउंट है, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। सो लेट अस प्रिपेयर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज डिविडेंड अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। proposed dividend account and provision for tax account। कितना ओपनिंग बैलेंस है? just write down the opening balance as well as closing balance। So what is the opening balance of proposed dividend account? So let us check the opening balance. Proposed dividend 80,000 and 1,44,000. 80,000 and 1,44,000. What is the opening and closing of provision for tax? 96 and 120. 96 and 1,20,000। दैट्स इट बेटा। ओपनिंग क्लोजिंग मैंने लिख दिया। अब फिर से बेटा एक बार हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इट इज सेड दैट इनकम टैक्स पेड ₹1 लाख। इनकम टैक्स पेड ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का इनकम टैक्स मैंने पे किया। बताओ बेटा क्या जर्नल एंट्री होगी? कैश मेरे पास आ रहा है या जा रहा है? सर कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। और बेटा कहां से हम पे करेंगे? वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन अकाउंट, सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। सो जर्नल एंट्री प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, provision for taxation account debit entry, journal entry number 7, provision for taxation account debit to cash oblique bank account। बेटा कितना टैक्स पे किया है? 1 लाख। सो 1 लाख 1 लाख। अब बताओ बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में इफेक्ट जाएगी? आंसर इज यस सर। लिखा है आपने सर कैश एंड बैंक। बताओ बेटा कौन सी एक्टिविटी है? मैंने पहले ही बताया था बेटा पेमेंट ऑफ टैक्स इट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी जिसको हम सेपरेटली दिखाते हैं। तो यहां पर बेटा ऑलरेडी हमने फॉर्मेट में लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने लिखा हुआ है कैश फ्लो बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स, और यहां पर हम लिखेंगे बेटा पेमेंट ऑफ टैक्स। यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा पेमेंट ऑफ टैक्स। कितना होगा बेटा पेमेंट ऑफ टैक्स? तो पेमेंट ऑफ टैक्स आपका आ जाएगा 1 लाख। कैश आउटफ्लो नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो बेटा इसकी इफेक्ट भी हम दे दें, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट मुझे लिखना है टू कैश ऑब्लिक बैंक, अमाउंट कितनी लिखनी है बेटा 1 लाख, दैट्स इट, इफेक्ट दे दी बेटा मैंने। ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट वी हैव रिटर्न टू कैश ऑब्लिक बैंक, इसका मतलब जो टैक्स मैंने पे किया है 1 लाख लिख दिया और जो मैंने पे किया है वो मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखा दिया। सेम वे क्या करना है, प्रपोज डिविडेंड, अब क्या लिखा है बेटा पढ़ते हैं प्रपोज डिविडेंड में, इट इज मेंशन दैट प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर इज आल्सो पेड, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड मैंने करंट ईयर में पे किया है। तो बेसिकली बेटा कंपनी में यही होता है ना, हम लोग क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जब मेरा ईयर एंड होता है ना तब हम लोग बेटा प्रोविजन करते हैं, क्योंकि बेटा डिविडेंड के लिए भी हम लोग क्या करते हैं प्रोविजन, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर कब होता है बेटा, डिविडेंड डिक्लेयर होता है एजीएम में। सो वी कैन से दैट कौन रेकमेंड करता है, द रेट ऑफ डिविडेंड इज रेकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट उसके लिए अप्रूवल चाहिए, किसकी अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए। तो इसका मतलब बेटा हम लोग क्या कहते हैं इसको, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ठीक है ना, ये डिविडेंड प्रपोज्ड है, जब तक इसको बेटा शेयर होल्डर्स अप्रूव नहीं करते हैं इसका मतलब हम पे नहीं कर सकते हैं। तो बेटा प्रपोज्ड पहले करेंगे अगले साल में, बट उसका पेमेंट कब होगा, करंट ईयर में होगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कि कंपनी ने प्रीवियस ईयर का, कंपनी ने प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का पे किया, अब आपके पास अमाउंट दी नहीं है। तो समझना क्या है बेटा, आपको समझना यही है कि सर जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है ना, दैट इज कितना ओपनिंग बैलेंस है प्रपोज डिविडेंड का 80,000, सर वही मेरा प्रपोज था प्रीवियस ईयर का और वही मैंने क्या कर दिया है करंट ईयर में पे किया है। तो बेटा मैंने करंट ईयर में कितना डिविडेंड पे किया, 80,000। तो बताओ बेटा व्हाट शुड बी दी जर्नल एंट्री, मैंने डिविडेंड पे किया, तो बेटा सेम जर्नल एंट्री जो हमने अभी ऊपर लिखी है वैसी एंट्री हम लिखेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, बेटा कितनी अमाउंट 80,000, 80,000, ठीक है। इसकी इफेक्ट प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रपोज डिविडेंड अकाउंट, on the debit side of proposed dividend account we have to write to cash oblique bank, and what is the amount, to cash oblique bank 80,000, and tell me बेटा जैसे ही कैश एंड बैंक आया इसका मतलब इट मस्ट बी ए पार्ट ऑफ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बताओ बेटा ये कौन सी एक्टिविटी है, डिविडेंड पे किया आपने, कौन सी एक्टिविटी है, इट इज अ फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो बेटा हम मेंशन करेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी में पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बेटा कैश आउटफ्लो, कितना कैश गया 80,000, कैश कितना गया 80,000, दैट्स इट, नेक्स्ट, यस। एंड द लास्ट एडजस्टमेंट, व्हाट इज द लास्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। बेटा हमने इन्वेस्टमेंट करंट ईयर में सेल कर दिए हैं और बेटा लिखा है इट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अब बेटा थोड़ा फंडा याद करो, अगर 20% सेलिंग प्राइस पे है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस पे है, तो बेटा मैं कह सकता हूं इट इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। यस, ये याद होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि सेलिंग पे 20 है बट मेरे पास तो बेटा बैलेंस शीट में क्या अवेलेबल होगा, मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल होगी। तो इन्वेस्टमेंट देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट आप लोगों को दिए हैं, कितने इन्वेस्टमेंट है, ओपनिंग है 160 और क्लोजिंग दिया है बेटा 0, इसका मतलब मैंने सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए। यस, और ये जो 1,60,000 इन्वेस्टमेंट है ये तो कॉस्ट पे दी है, बट बेटा मुझे प्रॉफिट 20% सेलिंग पे दिया है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर सेलिंग पे 20% है तो बताओ बेटा कॉस्ट पे कितना होगा। सो सेलिंग पे 20 है तो कॉस्ट पे कितना होगा 25। तो बेटा 1,60,000 आपकी कॉस्ट है, उसका 25% निकालो, कितना होगा बेटा 160, उसका 25% होगा 40,000। इसका मतलब 40,000 मेरे प्रॉफिट आया। तो बेटा 1,60,000 प्लस 40, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट मैंने कितने में बेचे, बेटा मैंने 2 लाख में बेचे। तो इसका मतलब 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट आपने 2 लाख में बेच दी है। तो बताओ बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी, व्हाट शुड बी दी जर्नल एंट्री। यस, कौन सी जर्नल एंट्री होगी, हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री नंबर 9। क्या जर्नल एंट्री हम करेंगे, हम जर्नल एंट्री करेंगे, यस, व्हाट इज द जर्नल एंट्री, 1,60,000 के इन्वेस्टमेंट
2 लाख में बेच दिए। सो जर्नल एंट्री कैश कितना आ रहा है, सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 2 लाख टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,60,000। और बेटा कितना प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट कहां पर जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। जर्नल एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,60,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000। 40,000 का प्रॉफिट जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब बताओ बेटा इसकी इफेक्ट। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी एक्टिविटी है बेटा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब बेटा ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो सबसे पहले हम लोग कहां पर दिखाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हम लिखेंगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई कितना कैश आ रहा है, 2 लाख, सो पॉजिटिव अमाउंट 2 लाख, एक एंट्री हो गई। नेक्स्ट सेकंड हमने लिखा टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब बताओ बेटा मुझे क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत है, क्या इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने की जरूरत है, नहीं है। देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैं फिर से बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस बेटा 1,60,000 ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है। अब बेटा जर्नल एंट्री हमने क्या की, हमने जर्नल एंट्री क्या की, जर्नल एंट्री की कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सो ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसका मतलब बेटा जैसे ही क्रेडिट साइड बेटा मैं लिखूंगा 1,60,000, ये मेरा अकाउंट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो जैसे ही ये मैंने लिखा मेरा अकाउंट एक और टैली हो गया, तो इसका मतलब बेटा मैं बोल सकता हूं मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये भी क्लोज हो गया। सो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यस, ये अकाउंट भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है ना, ये अकाउंट भी मेरा क्लोज हो गया। सो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दैट्स इट। और लास्ट हमने बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी हैव क्रेडिटेड प्रॉफिट टू द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा याद करो ये कौन सी मेथड है, ये हमारी इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में मैंने क्या किया, तो इनडायरेक्ट मेथड में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट लिखा है। बट बेटा एक और चीज मैं आपको बताऊं, मुझे बताओ कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमने बेचे हैं ये कौन सी एक्टिविटी है। सर इट इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट भी कहां पर जाना चाहिए, सर इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो दिखाओ ना, तो सर ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया है बेटा। जैसे ही ये 2 लाख रुपए मैंने यहां पर लिखे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, मुझे बताओ क्या ये 40,000 का प्रॉफिट मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखा चुका हूं, आंसर इज यस। तो अब बेटा ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, हमने जब ओरिजिनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ये 40,000 में ऑलरेडी दिखा चुका हूं, आंसर इज यस। तो क्या बेटा एक ही एंट्री में 2 जगह पर दिखा सकता हूं, आंसर इज नो। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट ऑलरेडी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड दिखा चुका हूं, क्या वो फिर से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो सकता है, आंसर इज नो। तो इसका मतलब बेटा मैंने अगर क्रेडिट किया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां से डेबिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये मेरी कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या तो मैं बोलूं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब मुझे ये अमाउंट यहां से माइनस करनी है। कितना माइनस करना है बेटा, -40,000। आई होप आई मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि बेटा एक ही प्रॉफिट में 2 जगह पर नहीं दिखा सकता ना, ये पीएनएल का भी पार्ट होगा। तो अगर ये पीएनएल का पार्ट होगा तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि पीएनएल मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया, तो क्या 40,000 में दोनों जगह दिखा सकता हूं, आंसर इज नो। मुझे कहां पर दिखाना है ये 40,000, इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इसीलिए जहां पर मैंने उसको क्रेडिट किया है मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, और रिवर्स का मतलब मैंने प्लस किया है, मैंने प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो मैंने लिख दिया इज ए नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज 40,000। ठीक है, यस। अब एक और चीज बेटा, एक और चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। अब क्या करेंगे, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। अब फाइनली हमें क्या करना है बेटा, फाइनली व्हाट वी हैव टू डू, finally we have to prepare, finally we have to close all the accounts। अब बेटा मुझे सारे अकाउंट क्लोज करने हैं, जितने भी अकाउंट्स है ना, ये सारे एडजस्टमेंट मेरे हो गए बेटा। अब मुझे क्या करना है,
वन बाय वन वी हैव टू क्लोज ईच एंड एवरी अकाउंट। उसमें से बेटा जितने अकाउंट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बेटा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सर क्लोज हो चुका है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्लोज हो चुका है, जनरल रिजर्व अकाउंट, अब बेटा इसे क्लोज करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट। अब बेटा मैं क्लोज करने जा रहा हूं जनरल रिजर्व अकाउंट। क्या जनरल रिजर्व अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है? आंसर इज यस सर, हमने जनरल रिजर्व अकाउंट बनाया है। बताओ बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट, आपका जो जनरल रिजर्व अकाउंट है, आप मुझे बताओ बेटा जनरल रिजर्व अकाउंट। यस, कहां पर है जनरल रिजर्व अकाउंट? यस सर, ये रहा जनरल। लेट अस क्लोज दिस अकाउंट। 6 लाख, 6 लाख। बताओ बेटा ये क्या होगा? व्हाट शुड बी द बैलेंसिंग फिगर? ये बैलेंसिंग फिगर क्या हो सकती है? ये बैलेंसिंग फिगर क्या हो सकती है जनरल रिजर्व अकाउंट? बेटा कितना आएगा? 2,80,000। द बैलेंसिंग फिगर इज 2,80,000। क्या होगी ये 2,80,000? बेटा करंट ईयर में अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है ना, उस करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं ना। तो ये बैलेंसिंग फिगर और कुछ नहीं है, यही है। क्योंकि जनरल रिजर्व में अगर कुछ एडिशन हो रहा है तो इसका मतलब बेटा वो एडिशन मैंने कहां से किया होगा? आउट ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। जो करंट ईयर का मेरा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से हम लोग क्या करते हैं, कुछ अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो बेटा मैं यहां पर क्या लिखूं? यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक और नई चीज आप लोगों के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका मतलब सर क्या एक और अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे? आंसर इज यस, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर क्या इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है? देख लेते हैं बेटा, अगर दिया है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिख लेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका मतलब अब समझना बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं क्या किया ये बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब करंट ईयर के प्रॉफिट में से मैंने कुछ अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर की है। कितनी अमाउंट बेटा? 280। तो बताओ मुझे जर्नल एंट्री क्या होगी? तो अब तो जर्नल एंट्री लिखनी नहीं है, अब आप लोगों को सिर्फ समझनी है। व्हाट शुड बी दी जर्नल एंट्री? आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जैसे ही जनरल रिजर्व में 280 लिखा, अकाउंट क्लोज हो गया। और एक इफेक्ट आपकी कहां गई? ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रोविजन, ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर मुझे लिखना है टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बेटा कितनी अमाउंट हमने ट्रांसफर की जनरल रिजर्व अकाउंट में? 2,80,000। अब एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं बेटा, इन केस ऑफ फर्म एंड इन केस ऑफ कंपनी, अगर आप लोगों ने बेटा पहले भी पढ़ाई की है ना तो आप लोगों ने देखा होगा हम लोग क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इनकम में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जितना प्रॉफिट आता है ना, जिसे हम बोलते हैं पीबी ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से हम लोग टैक्स माइनस करते हैं। और बेटा वो टैक्स माइनस करने के बाद अगर आपको याद हो तो पार्टनरशिप अकाउंट में भी हम लोग यही करते थे। जितना प्रॉफिट बचता है ना, वो प्रॉफिट बेटा हम कहां पर ले जाते हैं? बैलेंस शीट में नहीं, हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर क्यों ये अलग से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? रीजन है बेटा, क्योंकि अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका मतलब मेरा जो प्रॉफिट बचा ना, उस प्रॉफिट को अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं। तो इसका मतलब जितने खर्चे थे ना उसको हम बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट ये बेटा मेरा चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना है। सो दैट्स व्हाई वी आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट अकाउंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब जितना प्रॉफिट मेरा बचा है उस प्रॉफिट को मैं शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं, या कुछ मैं रिजर्व्स क्रिएट करने जा रहा हूं। तो इसका मतलब ये मेरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, इसे क्या माना जाएगा? इसे माना जाएगा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसे बोला जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा? तो बेटा डिविडेंड अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है कंपनी ने शेयर होल्डर्स को, लाइक इंटरिम डिविडेंड पेड, लाइक फाइनल डिविडेंड पेड, अगर कोई भी रिजर्व्स आपने क्रिएट की है, देन इट इज अ पार्ट ऑफ विच अकाउंट? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, ये अकाउंट हमने क्लोज कर दिया। यस, नेक्स्ट देखो बेटा, आपको बैलेंस शीट में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट हम इसे क्या मान के चलेंगे? हम इसे मान के चलेंगे ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस? 140 एंड 3 लाख। ओपनिंग बैलेंस इज 1,40,000, ओपनिंग बैलेंस इज 1,40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 3 लाख। ओपनिंग 140, क्लोजिंग 1 लाख एंड 140, क्लोजिंग इज 3 लाख। नेक्स्ट
बेटा इसे मैं क्लोज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें अभी और कुछ आइटम्स बाकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बेटा 4% डिबेंचर वो मैंने क्या कर दिया है, वो मैंने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है अकाउंट। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये मेरी करंट लायबिलिटी है। अब एक और चीज बेटा मैं आपको बताने जा रहा हूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी में, वर्किंग कैपिटल में हम लोग इसे लिखेंगे। अब एक चीज हमेशा याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं असेट्स, अगर बिजनेस में आपकी असेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो बेटा मुझे बताओ कैश इनफ्लो होगा या कैश आउटफ्लो होगा। इफ आई से इंक्रीज इन योर असेट्स, इसका मतलब कैश आ रहा है बिजनेस में या कैश जा रहा है। तो बेटा लेट अस टेक वन एग्जांपल, मैं बोल रहा हूं कि करंट ईयर में मैंने असेट्स परचेज की है, तो बेटा मैं असेट परचेज कर रहा हूं तो इसका मतलब इंक्रीज इन असेट, और असेट परचेज कर रहा हूं तो बेटा कैश क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। उसी तरह से बेटा अगर आपकी असेट डिक्रीज हो रही है तो मुझे बताओ बेटा कैश फ्लो से उसका क्या रिश्ता होगा, कैश फ्लो बढ़ेगा या कम होगा। तो बेटा असेट डिक्रीज हो रही है इसका मतलब असेट मैंने सेल कर दी है, असेट मैंने अगर सेल कर दी है तो बेटा कैश क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से लायबिलिटी, सेम लायबिलिटी, व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटी, अगर मेरी लायबिलिटी बेटा इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, अगर मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसका मतलब मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, मेरी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो। और अगर मैं बोलूं मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, ठीक है ना। सो प्लस एंड माइनस। तो अब बेटा फिर से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, फिर से आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और अब हम लोग लिखते हैं चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा है चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यस, क्रेडिटर्स, बेटा कितने क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है 2 लाख, और बेटा क्लोजिंग कितना है 240, तो बताओ बेटा इंक्रीज या डिक्रीज। सो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, बताओ बेटा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स इसका मतलब इंक्रीज इन योर लायबिलिटी, कैश इनफ्लो हो रहा है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, अमाउंट कितनी आएगी 40,000 इनफ्लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो क्या है बेटा, बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल ओपनिंग बैलेंस इज 80,000, क्लोजिंग बैलेंस इज 0, इसका मतलब बेटा मैंने क्या कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, पेमेंट कर दिया है, इसका मतलब डिक्रीज, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, डिक्रीज इन बिल्स पेएबल, अमाउंट 80,000 आउटफ्लो। नेक्स्ट, proposed dividend and provision for tax, so let us close the proposed dividend account, proposed dividend account को close करते हैं as well as provision for taxation account, proposed dividend account, let us close the proposed dividend account. So what is proposed dividend account, find out the missing amount, find out the missing amount बेटा, proposed dividend account टोटल हो जाएगा 2,24,000, 2,24,000, और बेटा आपकी मिसिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी, मिसिंग अमाउंट आ जाएगी 1,44,000। अब ये क्या होगा बेटा, याद रखना प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दोनों में इतनी इफेक्ट आती है, क्या आता है तो समझ लेना। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है और उसके साथ अगर करंट ईयर का पेमेंट दिया है तो जो बैलेंस बचेगा वो आपकी करंट ईयर की प्रोविजन होगी, इसका मतलब करंट ईयर में मैंने इतनी प्रोविजन की है, ठीक है ना, करंट ईयर की प्रोविजन। और बेटा हम लोग करंट ईयर की प्रोविजन कहां से करते हैं, बेटा मैंने पहले ही बताया प्रपोज डिविडेंड है, और डिविडेंड है इसका मतलब हम डिविडेंड कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, अमॉन्ग दी शेयर होल्डर्स, तो इसका मतलब बेटा ये किसका पार्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहां पर मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप बोल सकते हो करंट ईयर्स प्रोविजन, ये क्या हो जाएगा आपका करंट ईयर्स प्रोविजन। कितनी अमाउंट 1,44,000। बेटा जर्नल एंट्री नहीं करेंगे अब, डायरेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड अकाउंट। सो ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आई हैव टू राइट टू proposed dividend account and amount is 1,44,000. That's it. Next one is provision for tax.
अकाउंट क्लोज करते हैं बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट 2,20,000, 2,20,000। बेटा बैलेंस क्या आएगा, बैलेंस आएगा 1,24,000। मिसिंग अमाउंट इज 1,24,000। एंड वंस अगेन बेटा हम लोग प्रोविजन कहाँ पर लिखते हैं, वी ऑलवेज write this provision on the debit side of profit and loss account. So by profit and loss account even you can mention current year's provision. ये क्या हो जाएगा, current year's provision. अब बेटा इसकी इफेक्ट मैं फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, इसकी इफेक्ट मैं फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा कि इसकी इफेक्ट कहाँ पर जाएगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर्स प्रोविजन, याद रखना 1,24,000, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना, 1,24,000। तो अब आ जाते हैं बेटा बैलेंस शीट में। बेटा बैलेंस शीट में सारी आइटम खत्म हो गई है एक्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये दो आइटम अभी बाकी है, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा असेट साइड। असेट साइड शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल, क्लोज करते हैं गुडविल। अब देखो बेटा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस 320 एंड व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस 240। तो इसका मतलब डिफरेंस क्या किया होगा, आप सब जानते हो बेटा कि गुडविल हम लोग राइट ऑफ करते हैं, है ना। तो गुडविल हम लोग राइट ऑफ कहां पर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा पीएनएल में मैंने राइट ऑफ की है। अब बताओ बेटा पीएनएल में जब कभी भी हम राइट ऑफ करते हैं, पीएनएल में बेटा हम जब कभी भी इसको राइट ऑफ करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, हमारी जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो जैसे ही हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। एक इफेक्ट आपकी गई बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसका मतलब बेटा मैंने ये पीएनएल में डेबिट किया है। अब मुझे बताओ बेटा कि आपने राइट ऑफ किया गुडविल, ये गुडविल आपने जो राइट ऑफ किया मुझे बताओ ये कौन सा एक्सपेंस है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। और बेटा अगर ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एड बैक करना पड़ेगा। सो गुडविल राइट ऑफ, कितनी अमाउंट है बेटा गुडविल राइट ऑफ 80,000, गुडविल राइट ऑफ 80,000। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग एंड मशीनरी अकाउंट। क्लोज करते हैं बेटा दोनों अकाउंट को, बिल्डिंग एंड मशीनरी अकाउंट। यस, सो लेट अस क्लोज द बिल्डिंग अकाउंट। पहला ही अकाउंट हमने बनाया था बेटा बिल्डिंग अकाउंट। सो लेट अस क्लोज दिस अकाउंट। 11,20,000, 11,20,000, बिल्डिंग 11,20,000। मिसिंग अमाउंट बेटा, मिसिंग अमाउंट कौन सी कितनी आएगी चेक कर लेना एक बार, 4,80,000। उसी तरह से मशीनरी अकाउंट, लेट अस क्लोज द मशीनरी अकाउंट ऑल्सो, 9 lakh, 9 lakh। एंड व्हाट इज द मिसिंग अमाउंट, द मिसिंग अमाउंट इज 3,40,000। बहुत सिंपल है बेटा, दोनों आपकी असेट है और असेट में अगर डेबिट साइड बैलेंस आ रहा है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, परचेज ऑफ असेट्स। इसका मतलब यहां पर मैंने असेट परचेज किया और बेटा असेट आप परचेज करते हो तो इसका मतलब हम यहां पर लिखेंगे टू कैश और बैंक, और ब्रैकेट में बेटा मैं मेंशन कर सकता हूं टू परचेज। यहां पर भी बेटा मैं लिखूंगा टू कैश ऑब्लिक बैंक और ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं परचेज। सो दैट्स इट। अब बताओ बेटा ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, इट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सो 480 एंड 340। 480 एंड 340। परचेज इसका मतलब कैश आउटफ्लो। सो परचेज ऑफ बिल्डिंग कैश आउटफ्लो, परचेज ऑफ मशीनरी 340 कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट नेक्स्ट है बेटा स्टॉक एंड डेटर्स। स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, बेटा ये तीनों हमारी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, करंट एसेट्स है। तो बेटा देखो कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। स्टॉक बेटा 120 से 2 लाख स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक इंक्रीज इसका मतलब आपकी असेट्स इंक्रीज हो रही है, अगर असेट इंक्रीज हो रही है इसका मतलब कैश आउटफ्लो, असेट इंक्रीज हो रही है सो कैश आउटफ्लो लिखेंगे बेटा यहां पर, इंक्रीज इन स्टॉक कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो माइनस 80,000। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज डेटर्स।
बेटा डेटर्स 176 है और डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, सो डिक्रीज इन डेटर्स इसका मतलब कैश इनफ्लो, डिक्रीज इन डेटर्स कितनी अमाउंट 16,000, दैट्स इट। नेक्स्ट कैश एंड बैंक बैलेंस, बेटा ये फाइनल हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट याद आ रहा है बेटा, बिगिनिंग में मैंने बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इट इंक्लूड्स कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो बेटा कैश का ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज बैंक का ओपनिंग बैलेंस हम सबसे पहले लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के ओपनिंग बैलेंस में। सो व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? कैश का ओपनिंग है 40 और बैंक का डैश है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना हो गया? मेरा ओपनिंग बैलेंस हो गया बेटा 40,000। मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया? 40,000। तो यहां पर बेटा मैं लिखूंगा मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस आएगा बेटा मेरा 40,000। और बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितना निकल के आएगा? क्लोजिंग बैलेंस है 44 प्लस 160, सो 44 प्लस 160 2,04,000। तो ये मेरा आंसर है। क्लोजिंग मेरा कितना आना चाहिए? 2,04,000, 2,04,000। तो इन शॉर्ट बेटा मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरा नेट कैश फ्लो कितना आना चाहिए, रिवर्स में जाके हम निकाल सकते हैं ना। मैंने क्या लिखा है यहां पर? यहां पर हमने लिखा है बेटा देखो नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एक्टिविटी में से मेरा जितना कैश फ्लो है मैंने उसको प्लस कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी। उसमें मैंने ऐड क्या किया? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 और फाइनल मुझे आंसर मिलना चाहिए क्लोजिंग एंड क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट दैट इज 2,04,000। तो मैं रिवर्स में जाके फाइंड आउट करना चाहता हूं 2,04,000 माइनस 40। तो बताओ बेटा मेरा नेट कैश फ्लो का आंसर कितना आना चाहिए? इट हैज टू बी 1,64,000। ये मेरा आंसर आना चाहिए, तीनों एक्टिविटी में से इतना मेरा आंसर आना चाहिए। यस एंड फाइनली नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, अब फाइनली बेटा ये जो दो अकाउंट बाकी है उस दो अकाउंट पे मैं आता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो फाइनली वी हैव टू क्लोज दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो भी बताओ कितना बैलेंस आएगा, एक बार चेक कर लेना। 7,24,000, 7,24,000। तो ये क्या होगा? ये होगा बाय प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये कौन सा प्रॉफिट होगा? ये प्रॉफिट होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये कौन सा प्रॉफिट होगा? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। और बेटा माइनस करोगे तो यहां पर आपको बैलेंसिंग अमाउंट मिलेगी 5,84,000। आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगी 5,84,000। अब समझना बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अब थोड़ा समझना, हम लोग क्या करते थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बैलेंस हम कहां पर लेकर आते थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये हमने ढूंढा इस क्वेश्चन में, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया है, बट करंट ईयर का कितना प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स वो नहीं दिया है। तो बेटा वो हम लोगों ने निकाला, तो करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे कितना मिला? 5,84,000। अब समझना एक और एडजस्टमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा करंट ईयर की प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये पॉइंट मैंने बाकी रखा था। क्या लिखा था हमने? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करंट ईयर में मैंने प्रोविजन की है कितने अमाउंट की? 1,24,000 की। अब मुझे बताओ बेटा करंट ईयर में जब कभी भी हम प्रोविजन करते हैं, मुझे बताओ क्या प्रोविजन मैंने की तो मेरा कोई कैश आउटफ्लो हुआ? आंसर इज नो। इसका मतलब बेटा यही हुआ ना कि एक जेब में से पैसे निकाले और दूसरी जेब में मैंने पैसे रख दिए। तो इसका मतलब प्रोविजन करना, इसका मतलब ये कौन सी एक्टिविटी हुई? इट इज ऑल्सो अ नॉन कैश एक्टिविटी। ये भी मेरी कौन सी एक्टिविटी है? नॉन कैश एक्टिविटी हुई ना। बट क्या ये एक्टिविटी मुझे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखनी है? आंसर इज नो। याद रखना बेटा हम लोग बेटा शुरुआत कहां से करते हैं पता है? हमारा हेडिंग ही है, मैंने लिखा है यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने यहां पर हेडिंग लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मुझे शुरू करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, जबकि मेरे पास आंसर अभी मेरे पास क्या अवेलेबल है? मेरे पास आंसर अभी अवेलेबल है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया? दैट इज 5,84,000। तो बेटा मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? मुझे इसे कन्वर्ट करना है बिफोर टैक्स में। मुझे इसे कन्वर्ट करना है बिफोर टैक्स में। तो बेटा मेरा ये आंसर आया 5,84,000 और
मुझे इसे कन्वर्ट करना है बिफोर टैक्स में, तो मुझे बताओ बेटा करंट ईयर में मैंने कितनी प्रोविजन की है। अब बेटा मैं इफेक्ट आपको बताने जा रहा हूं कि करंट ईयर में मैंने जो प्रोविजन की है दैट इज 1,24,000। कितनी प्रोविजन की है? 1,24,000। ये जो प्रोविजन है बेटा, ये प्रोविजन मुझे यहां पर क्या करनी पड़ेगी? एड बैक करनी पड़ेगी। और जैसे ही बेटा यहां पर मैं इसे एड बैक करूंगा 1,24,000, जो आंसर मुझे मिलेगा बेटा, उस आंसर को हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसे हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और बेटा इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा? इसका आंसर मुझे मिलेगा 7,08,000। नाउ यू कैन सी द एंटायर answer is ready. Cash flow from operating activity, we have started the answer with net profit before tax। और ये before tax कैसे आया? तो बेटा profit after tax मैंने निकाला कहां से? profit and loss appropriation account में से। और current year की provision मैंने निकाली provision for taxation account में से, उसको मैंने उसमें ऐड कर दिया। तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा? net profit before tax। कितना आया? 7,08,000। अब बेटा प्लस माइनस करते जाएंगे, प्लस माइनस करते जाएंगे, इसको प्लस माइनस आप लोग करते जाओगे तो फाइनली आपको अमाउंट मिल जाएगी बेटा यहां पर 7,08,000 प्लस 220 प्लस 20 प्लस 80 माइनस 40 प्लस 40 माइनस 80 प्लस 16 माइनस 1 लाख। तो बेटा आपको मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आपको आंसर मिलेगा यहां पर 7,84,000। आपको पहला आंसर मिलेगा 7,84,000। नेक्स्ट बेटा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सो 2 लाख माइनस 480 माइनस 340। तो इसका मतलब बेटा यहां पर आपको कितना आंसर मिलेगा? यहां पर आपको आंसर मिलेगा नेगेटिव कैश फ्लो, और नेगेटिव कैश फ्लो आपका आएगा 6,20,000। एंड फाइनल बेटा आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी आपका आंसर कितना आएगा? ये होगा आपका पार्ट सी 120 एंड 380। 120 एंड 380 इसका मतलब हो जाएगा 5 लाख, और ये आपका नेगेटिव है 5 लाख, तो इसका मतलब बेटा ये आपका आएगा 0। ये आपका कितना आंसर आएगा? 0। एंड फाइनली व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ऐड नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी। अब बेटा इन तीनों का टोटल मेरा कितना आना चाहिए? 164। तो बेटा मेरा आंसर है 7,84,000। 784 में से आप 620 माइनस करोगे, ये तो 0 है, तो 620 माइनस करोगे तो बेटा आपको आंसर कितना मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 1,64,000। So that's it from my side. I hope I make it clear to all of you. This is the most important question, और बेटा ये क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी में 14 मार्क्स के लिए आता है। I hope I make it clear to all of you. Thank you.